A very good morning, class 9th students. I hope you all are studying and going through the videos daily and also making notes. There are some good news coming that schools are going to be open shortly. So there will are chances that I will meet you in person shortly. But continuing with the chapter in geography, today I am beginning with chapter number 2, that is physical features of India. Your economics course is complete, your history course is almost complete. Now we are moving towards geography and political science, that I'll complete very fast. Obviously, if I'll get a chance to teach you in class, the course will run fast, but through videos also the things are processing or progressing in a good way, and I hope you all are understanding the things. If you are not understanding, you can ask me. Slowly very shortly your exams are going to happen and you have to read the whole chapter. I have given the questions from in between the chapters and there will be multiple choice questions there. So you have to read the chapter very carefully, because without reading the chapter you will not be able to answer. Coming to the chapter physical features of India. India, you know, is made up of mountains, plains, rivers and different things. The basic things are that we have mountains, we have plains, we have rivers, we have valleys. Every geographical means I would be say characteristic we mostly found in India. इंडिया में हम सब कुछ पाते हैं, हर तरीके का मौसम, हर तरीके के पत्थर, हर तरीके की पानी. तो इंडिया ब्लेस्ड कंट्री है. इट इज़ अ ब्लेस्ड कंट्री दैट इट हैज़ अ वर्ल्डली वेदर. वर्ल्डली मीन्स जहाँ जैसा भी एक ही टाइप का वर्ल्ड नहीं है, वेदर नहीं होता. वर्ल्ड में जितने टाइप के वेदर होते हैं, जितने टाइप के क्लाइमेट होते हैं, सब इंडिया को कहीं ना कहीं आप पा सकते हैं. इंडिया में कहीं ना. टेक्टोनिक प्लेट्स. What are tectonic plates? Tectonic plates are the plates that are made by the internal heating of earth. You know that inside the earth there is a lot of heat, and this heat is breaking down the rocks, the semi molten rocks जो अर्थ को बनाती हैं, तुमने पहले पढ़ा होगा, उनको ब्रेक करके प्लेट का फॉर्म देती है. These plates are known as lithospheric or tectonic plates. The plates that are made by heating of Earth's internal surface and melting of molten rocks, semi-molten rocks, they are known as lithospheric or tectonic plates. There are 7 such plates in the world. 7 जगह हैं ये प्लेट्स, 7 नेम है प्लेट्स के. प्लेट्स कहाँ हैं? साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, पैसिफिक, इंडो ऑस्ट्रेलियन, यूरेशियन, अफ्रीकन एंड एंटार्क्टिक. 7 हैं, ठीक है. जैसे हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उसी तरीके से 7 टेक्टोनिक प्लेट्स भी हैं. मोस्टली सारे कॉन्टिनेंट्स को कवर करती हैं. तो वो कहाँ हैं? फिर अगेन आई एम रिपीटिंग. साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, पैसिफिक, इंडो ऑस्ट्रेलियन, यूरेशिया, अफ्रीकन एंड एंटार्क्टिक. These are the tectonic plates. अब there are different types of tectonic plates also. Tectonic plates की types हैं. क्या types हैं tectonic plates की? That I am going to tell you. Broadly speaking, these tectonic plates are of 3 types. 3 टाइप्स की होती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स. फर्स्ट इज डाइवर्जिंग, सेकेंड इज कन्वर्जिंग एंड थर्ड इज ट्रांसफॉर्म प्लेट्स. डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग एंड ट्रांसफॉर्म. व्हाट इज डाइवर्जिंग? व्हेन डाइवर्ज करना, मूव अवे फ्रॉम. जब प्लेट्स एक दूसरे से मूव करती हैं, हमें अलग होती हैं रॉक की प्लेट्स, तो उनको हम कहते हैं डाइवर्जिंग प्लेट्स. ठीक है. और उसकी जो बाउंड्री होती है उसको क्या कहते हैं हम? डाइवर्जेंट बाउंड्री. ठीक है. तो डाइवर्जिंग प्लेट्स, व्हेन द प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, दे आर नोन एज डाइवर्जिंग प्लेट्स. कन्वर्जिंग प्लेट्स, if these plates on the other hand are pushed together,
एक तरफ जुड़ती हैं, एक साथ जुड़ने की कोशिश करती हैं, तब उनको क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग प्लेट्स कहते हैं। ठीक, डाइवर्ज अलग होना, कन्वर्ज एक तरफ जुड़ना, तो डाइवर्जिंग एंड क्रम्बिंग। कन्वर्जेंट बाउंड्री, इनकी जो बाउंड्रीज होती हैं इन प्लेट्स की, दे आर नोन एज कन्वर्जेंट बाउंड्री। एंड ट्रांसफॉर्म प्लेट्स, ट्रांसफॉर्म converging plates sometimes neither collide with each other nor slide। जब ट्रांसफॉर्म प्लेट्स होती हैं, जब एक तरफ मूव भी नहीं करती, दूसरी तरफ अलग भी नहीं होती, अलग अलग चलती रहती हैं, दे आर नोन एज ट्रांसफॉर्म प्लेट्स। लाइक रेलवे की पटरियां होती हैं, कभी साथ चलती है लेकिन जुड़ती नहीं है, तो ठीक, अगर जुड़ जाए तो कन्वर्जिंग, अलग होती हैं तो डाइवर्जिंग, लेकिन दोनों नहीं हो रहा, साथ चल रही, तो दैट इज वाई दे आर नोन एज ट्रांसफॉर्म प्लेट्स। तो टेक्टोनिक प्लेट्स तीन टाइप की होती हैं। फर्स्ट टाइप इज डाइवर्जिंग प्लेट्स, सेकेंड टाइप इज कन्वर्जिंग प्लेट्स, एंड द थर्ड टाइप इज ट्रांसफॉर्म प्लेट्स। सो ये थ्री टाइप्स ऑफ प्लेट्स आर देयर। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। सो और टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स व्हेन द ड्यू टू द हीट ऑफ द अर्थ, ड्यू टू द इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ, व्हेन द सेमी मोल्टन रॉक्स आर broken down, they crumble down into larger fragments, they are known as tectonic plates। जब रॉक टूट के बड़े बड़े हिस्सों में हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी उसको कहा जाता है, इधर लिथोस्फेरिक और टेक्टोनिक, द बोथ नेम इज गिवन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वर द हिमालयास फॉर्म? हिमालय कैसे बने, ये तो हमें पता करना चाहिए। बिकॉज द हिमालय वी नो दे आर द माउंटेन रेंजेस दैट कवर इंडिया। As already said, the relief features of India are not the same as it was millions and millions of years ago. They have undergone great change during these long. Geologists have us believe that now Himalayas stand. Once there was a vast sea called Tethys. All these changes were brought about by the internal movement below the earth crust and external forces operating on the अब ज्योग्राफी पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? जियोलॉजिस्ट। दे आर सेइंग दैट अर्थ के अंदर हमेशा मूवमेंट होता रहता है बिकॉज ऑफ द क्रस्ट। क्रस्ट जो अर्थ होता है, लावा की वजह से, हीट की वजह से मूवमेंट होता रहता है, और उस मूवमेंट से अर्थ में चेंजेस आते रहते हैं। तो ये जो हिमालयन चेंजेस आए हैं, इट इज़ ऑल्सो चेंज ड्यू टू द टेक्टोनिक, द चेंज इन द टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स अगर चेंज नहीं होती तो हिमालयस का फॉर्मेशन नहीं होता। टेक्टोनिक प्लेट्स जब जुड़ती गई, दे लेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिमालयस। ठीक है, वो कह रहे हैं द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस इज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ क्रिस्टल प्लेन्स। ओके, इट इज सेड दैट वन ऑफ सच प्लेट्स नोन एज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सेपरेटेड फ्रॉम द सुपर कॉन्टिनेंट एंड ड्रिफ्टेड स्लोली टुवर्ड्स द नॉर्थ। कह रहे एक प्लेट जो थी, टेक्टोनिक प्लेट, बड़ी प्लेट, वो अलग हुई सब कॉन्टिनेंट से, एंड इट ड्रिफ्टेड टुवर्ड द, मूव करी नॉर्थ की तरफ, और हिमालयाज नॉर्थ में ही है। और इसी प्लेट, दिस प्लेट लेड टू द जनरेशन ऑफ हिमालयाज। ये टेक्टोनिक प्लेट जो अलग हुई इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से, ये इसको ही हम हिमालयाज कहते हैं, जो अलग जाके नॉर्थ पे स्टैब्लिश हो गई। This established plate is known as Himalayas। ठीक है, it collided with a much larger Eurasian plate about 5 crore years ago। 5 crore, the northern edge of the Indo-Australian plate was pushed beneath the Eurasian। As a result collision of these plates, the sedimentary rocks of the enclosed ocean were folded to form the so-called Himalayas and other mountain systems of Central Asia। कहते हैं 2-3 प्लेटें, यूरेशिया की प्लेटें, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेटें, ये सब दब गई, और बड़ी प्लेट जो अलग हुई थी उसकी वजह से फॉर्मेशन किसका हुआ?
formation of Himalayas. Okay, so formation of Himalayas is clear. I am putting down the notes also today. I will end the video here only because this is an important chapter, and slowly I will explain you. The notes are also important. It's not a long chapter, a small chapter, but the notes are quite important of this chapter, and this chapter is also important for your exams. So please read it. If the tectonic plates or Himalayan anything is not clear, you are free to give me a call. I will answer all your queries.